يفقهوا قولي والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. حضرات گرامی قدر واجب الاحترام مومنین، خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو ایام فاطمیہ کے حوالے سے اور خاص طور سے شہدائے کوئٹہ پاکستان میں جو شیعوں پر بے رحمانہ حملہ کیا اور شہید کیا، اس سلسلے میں احتجاجی پروگرام میں تشریف لائے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور مجلس کیونکہ بہت تاخیر بھی ہو گئی ہے، لیکن کوشش کروں گا زیادہ مطالب کم وقت میں بیان کروں۔ سورہ کوثر علی ظاہر قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ اور یہ سب کی زبان زد ہے، بچہ ہو کوئی بھی ہو سب کو یہ سورہ الحمدللہ یاد ہے۔ قرآن میں ٹوٹل 114 سورے ہیں، ان 114 میں سے سورہ کوثر سب سے مختصر اور مختصر کے ساتھ مفید، جامع اور معنی، اور اس کی جتنی شرح کی جائے حقیقت میں سورہ بقرہ بھی مدھم پڑ جاتا ہے۔ شہدائے مظلوم کوئٹہ کے بارے میں کچھ بولوں گا، اور پھر حالات جیسے دیکھوں گا مجلس کا ختم کر دوں گا۔ اور میں گل محمدی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دلخراش اشعار پیش کیے، ارتقا صاحب نے بھی اسی طرح جامع اور معنی، اور محترم شمشیر صاحب کے فرزند نے بھی بہترین انداز میں جامع معنی کلام پیش کیے۔ ہمارے زمانے میں یہ جذبہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ حالات کے اعتبار سے انسان اپنے کو لائے اور سنبھالے، اور اپنے کو اس راہ پر جس راہ پر اہل بیت نے ہمیں بتلایا اور سکھلایا ہے، ہمیں چلنے کی ہم سب کو اللہ توفیقات دے۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا قصیدہ ہم آپ یا ان کے بغیر بیان نہیں کر سکتے، بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ لوگ خود ہی اہل علم ہیں، آپ لوگ خود 4-5 مجلسیں پڑھ سکتے ہیں آرام سے، جبکہ کوئی تیاری آپ لوگ کی نہیں ہے۔ لیکن آپ سوچئے کہ بی بی زہرا کے بیان کرنے کے لیے آپ خالی صرف ان کے ناموں پر غور کریں کہ ان کے نام میں کتنی برکت ہے۔ ان کا نام میں سب نام بہت اچھے، ایک سے بڑھ کر ایک نام ہے، مثلا معصومہ، مظلومہ، سیدہ، سمجھ رہے ہیں، ام ابیہ، ام الحسنین، ام الستین، اور اسی طرح سے ام الحسن ایک لقب ہے، ام الحسین بھی ایک لقب ہے، پھر ایک زہرا، پھر ایک راضیہ، پھر ایک مرضیہ، پھر ایک طاہرہ، پھر ایک مطہرہ، پھر ایک بتول، پھر ایک عذرا، پھر آپ آگے صالحہ، کتنے نام ہیں، سب کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ لیکن ان ناموں کی تمام ناموں میں سب سے بہترین نام فاطمہ، صلوات پڑھنے والا۔
نے ارشاد فرمایا، تو ڈائریکٹ امام فرماتے ہیں کہ جب میری جدہ بی بی زہرا محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے تو ان کی پیشانی سے نور ساطع ہو کر آسمان کی حدوں تک پہنچتا ہے اور وہ ایسا چمکتا ہے کہ جس طرح زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ بی بی زہرا کے ناموں کی بہت سنگینی ہے۔ ہم آپ یہ سنتے چلے آئے کہ رسول اسلام جیسے ہی بی بی زہرا کو دیکھتے تھے، سمجھ رہے ہیں، اپنی جگہ سے اڑ جاتے تھے اور بی بی زہرا کو اپنی جگہ پر بیٹھاتے تھے۔ یہ سنا ہے، لیکن آپ توجہ کرنا ہے، میں اپنی انداز میں بات پیش کرنے جا رہا ہوں، سنیے گا توجہ کے ساتھ۔ بی بی زہرا کے نام میں اتنا سنگینی ہے اور اتنی معنویت پائی جاتی ہے کہ پھر ان کی ذات میں کتنی برکت ہوگی، توجہ فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ ایک شخص چھڑے مار کی خدمت میں آیا اور کہا، مولا میرے یہاں خدا نے بیٹیاں عطا کی ہیں، ان کے نام رکھنے ہیں، آپ بتا دیجئے۔ مولا نے فرمایا جاؤ نام رکھ دو۔ اور جیسے ہی لفظ فاطمہ امام کے دہنے مبارک پر آیا، کہتے گئے اور فاطمہ فاطمہ تو کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ یہ امام ہے کہ لفظ فاطمہ پر کھڑے ہو گئے، سمجھ رہے؟ تو فاطمہ کے نام میں اتنی سنگینی، تو ذات بی بی زہرا کتنی سنگین ہوگی کہ جب آتی تھی رسول اٹھ جایا کرتے تھے اور بی بی زہرا کو اپنی جگہ بیٹھا دیا کرتے تھے۔ صلوات پڑھنے کا اتنی معنویت، بی بی زہرا بہت عظیم الشان بیوی، سمجھ رہے ہیں؟ اتنی عظیم بیوی ہے کہ میں نے کتابوں میں پڑھا، کائنات میں جنت کسی کو تلاش نہیں کرتی، یہ اللہ تعالیٰ شعرا تلاش کروا دیتے ہیں۔ ہاں، لیکن میں جو پڑھنے جا رہا ہوں نا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، جنت کسی کو تلاش نہیں کر رہی ہے، کیونکہ امام سے یہ حدیث ہے، لیکن سبحان اللہ، قربان جاؤں مولا، جنت عورتوں میں صرف 4 خواتین کی مشتاق ہے، صرف 4 لوگوں کی ذات کی محتاج اور ان کو تلاش کر رہی جنت۔ وہ کون ہے؟ نمبر 1 بی بی مریم، جنت تلاش کر رہی ہے کہاں بی بی مریم۔ نمبر 2 آسیہ بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، یعنی جنہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، یعنی زمیں فرعون کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں، تو جنت ان کی بھی تلاش میں۔ تیسرے نمبر پر کون؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ، جنت ان کی تلاش میں۔ لیکن ان تینوں کے بعد سب سے زیادہ جنت جو بے قرار ہے بی بی فاطمہ الزہرا کی، صلوات پڑھتے ہیں۔ بی بی زہرا کی کرامات اور صحابات آپ لوگوں نے تو مولا علی بہت سنے۔ بی بی زہرا کی صحابت بتاؤں، پاکستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں نے مطالعہ کیا۔ بی بی زہرا کے دروازے پر ایک سائل آیا جناب، وہ جو پڑھا، اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا کہ ہے کوئی اس اہل بیت کے گھر میں جو ہمیں ایک گوسفند دے دے۔ اس سائل کو گوسفند کی ضرورت تھی، ہوتا ہے کبھی کبھی مانگنے والے کو کپڑے کی ضرورت ہے، کبھی پیسے کی ضرورت ہے، کبھی کھانا ہی دروازے پر مانگ لیتے ہیں، آپ لوگ ساتھ ہوتا رہتا ہوگا جناب، سبھی کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی آ کر کچھ مانگ لیتا ہے، اس کو گوشت کی ضرورت ہے، یعنی بکرے کی ضرورت ہے۔ آیا، آنے کے بعد بی بی فضہ سے بی بی زہرا نے سوال کیا، وہ سائل جو آیا کیا طلب کر رہا ہے؟ بی اسے گوشت چاہیے، بکرا چاہیے۔ بی بی زہرا نے اپنے
चाबी निकाली, बीबी फिजा को दिया, जा साहिल को दे दे, बोल मेरे बाप में जितने बकरे हैं ले जाए। सलवार पढ़ने पर ये सखावत है, हम लोगों की सखावत जो मैं समझता हूँ 1984-85 से चली आ रही है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कोई 5 रुपया भी चल रहा है, वो बढ़ा नहीं होगा, बहुत कर दिया 10 कर लीजिए और क्या। अब आप बताइए कि हम लोगों की सखावत का क्या है, अब कौन कहाँ जाएगी हमारी। जिस कौम के लोग मार दिए जाए पाकिस्तान में बेसहारा और बेरहमाना, और उनकी क्या गलती थी। अबे आइए जमीन को दिला, ये किस गुनाह में मार दिए गए, इनका क्या जुर्म था, इन्होंने क्या बिगाड़ा था। ये कोयले की खदान में जाकर काम करते थे, मजदूर थे, आना जाना लगा रहता था। ये सिर्फ और सिर्फ अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की खातिर है। अगर हम आपको दर्द नहीं हुआ तो क्या लोग कहते हमसे क्या मतलब, वो तो वहां के शिया थे, कहने लगते हैं अल्लाह ने हमको भी 5 उंगलियां दी, अलग अलग दी है। अब ये उंगली का इससे हमसे क्या मतलब, लेकिन अगर एक कट गई तो दर्द सब में होता है। सलवात पढ़ते वक्त समाज कहाँ जा रहा है, हमको खुद फिक्र नहीं। हम कहाँ बैठते हैं, हम कहाँ खाते हैं, हम कहाँ सोते हैं, बेमकसद रास्ता चल रहे हैं। इसको हमका क्या है, जो इंसान बेमकसद रास्ता चले उसको पता नहीं किस मकसद से हम यहाँ बैठे, वो कौन कहाँ जाएगा। बीबी ज़हरा की उम्र पूरे 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम में सबसे कम उम्र थी, लेकिन मैं गुलू नहीं करता, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नौज़ुबिल्लाह। जो काम बीबी ज़हरा ने 18 साल में कर दिया, अंबियाओं में किसी ने नहीं किया। मुताला कीजिए, इल्म रहे तो समझ में आए लोगों को, कुरान पढ़े तो समझ में आए। 18 साल की उम्र में बीबी ज़हरा ने इस्लाम के हर शोबे में दस्तखत दी है और उसको उजागर किया। समझ रहे बीबी ज़हरा ने, अगर इंसान बयान करे होश हो जाए। आज हमारे समाज से मोहब्बत उड़ गई है, बेटी आई है घर तो है, बहू को बुलाने वाला कोई नहीं, बहू जो चली गई फिर उसको राजी करने वाला कोई नहीं। क्यों है ऐसा। बीबी ज़हरा की उम्र 18 बरस, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की बहुत ही तारीफ कोई बताए झूठी से झूठी कि बीबी ज़हरा ने पूरी जिंदगी किसी को नाराज किया। क्यों, क्योंकि रसूल इस्लाम ने लफ्ज़ कहा था फातिमा बदअतु मिन्नी, फातिमा मेरा पाले छिया है। तो अगर रसूल के लिए आयत उतरी सूरह नून वल कलम में कि इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, तो ये जिगर पाले जिगर में इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम तो फरमाएंगे। अगर आयत पारा नंबर 4 की कह रही है लोग कुंता फज़न खलीज़ल क़ल्ब लम फज़ू मिन हौलिक मेरे रसूल, अगर आपने सख्ती से किसी से गुफ्तगू की तो लोग आपके इर्द गिर्द जो हैं वो सब परवाने बिखर जाएंगे। तो क्या बीबी ज़हरा इस तरह करेंगी या किया कोई जिंदगी में नहीं। बीबी ज़हरा ने चाहे वो बेटी की हैसियत रही हो उनकी, या ज़ौजा की हैसियत रही हो, समझ लें, या बहू की हैसियत रही हो, या माँ की हैसियत रही, हर चारों मकाम पर बीबी ज़हरा कंप्लीट उठी। इसीलिए बीबी ज़हरा के बच्चों को शौहर को लक़ब मिल गया, बाप को रसूलुल्लाह मिला, शौहर को अली वलीउल्लाह मिला, बच्चों को सय्यदे शबाब अहले जन्नह मिला। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद ना कोई मनाने वाला ना कोई सुनाने वाला, जिसकी बेटी जहाँ गई है नाराज साल भर हो गए, किसी के यहाँ तिलाक में तबाह होगा। ये खाली शादी करना कमाल नहीं है, निकाह पढ़ना कमाल नहीं है, समाज की तरफ ज़ेहन रहना कमाल है।
शादियां नहीं हो रही, जबकि अगर आप हदीसें पढ़ें, अल्लाह ने हमारे ने कहा कि अगर कोई बगैर शादी के दुनिया से गुजर जाए तो अज़ाब क्या है, जहन्नम में। सीधी हदीस है, कोई टेढ़ी नहीं है। लेकिन ये भी है सीधी हदीस, अगर किसी ने शादी की तो उसने आधे दीन को महफूज कर लिया। आधे दीन के लिए इस्लाम की ताबेयत और पैरवी और इताअत करता जाए, पूरा इस्लाम मिल गया। सलवात पढ़ दे करवा देंगे तो कोई जरूरी नहीं कि हमारा साहब हमसे कहे। ये हमारा फरीजा है कि पड़ोस की बेटियों का ख्याल रखें, पड़ोस के जवानों का ख्याल रखें। वो शर्म के मारे, हया के मारे हमसे बात नहीं करते। ये तो हमारे बुजुर्गों की जरूरत है कि उसको कदम आगे बढ़ाएं, शरीयत को आगे बढ़ाएं, जवानों के मसाइल को हल करें। खामराई साहब ने बेहतरीन बयान दिया था मौला हुसैन के हवाले से, ए जवानों हमेशा इस्लाम की तरफ कदम आगे बढ़ाते रहो, चाहे कोई साथ दे या साथ न दे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दो ज़बान मुंह में रखना हराम है। लिसान वजहैन, हमारे भाई के सामने कुछ, चौहर भाई के सामने कुछ, ये मना सूरह मुनाफिकीन पढ़िए, सूरह बकरा आयत नंबर 6-7 तिलावत कीजिए। आयत करीब सवाल हमारे ईमान जब ये मेरे रसूल आप इन्हें डराओ या ना डराओ, ये बराबर के ईमान लाने वाले नहीं। वैदा खराइला शयाती नहीं कालू, हमारे मुकर तो करेंगे अच्छा, और जब तन्हाई में गए तो कहेंगे अब तो शैतान आप पर ईमान है, घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं, उधर नहीं जाएंगे। कितने लोग मजलिसों में आते हैं, शैतान नहीं रहता, वहीं से लौट जाते हैं। देखिए अब आपको मिसाल अक्सर मराजे 80 के ऊपर है, और आप किताब का मुतालिया कीजिए, 110 साल किया, कोई 105 किया, क्यों? क्योंकि ये लोग सारी चीजों की रियायत करते हैं। कोई मुस्तहिद आप नहीं देखोगे जो बेचारा 50 के अंदर पार हो गया हो। बताइए नाम, आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं बताऊंगा 50 के अंदर जो गया नहीं गया। बाबुल सद्र जैसी शख्सियत आपकी 55 से लेकर 60 के अंदर की उनकी उम्र थी, वो भी शहीद किया गया तो दुनिया में, समझ रहे? वरना कोई हमारा मुस्तहिद, मैंने बड़ी मेहनत की इस चीज पर कि कौन सा ऐसा मुस्तहिद है जिसकी उम्र 50 के अंदर नहीं चला गया हो। वो लोग बात है कि शहीद कर दिया हो बंदूक के जरिए, तो वो शहादत है, वो मौत नहीं है, वो शहादत है। जिंदगी जावे सुभान अल्लाह ला तहसबन लजीना क़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवातन वला यमीन रब्बिहिम युरज़क़ून। ये आप पूरी दुनिया मुसलमानों की दुश्मन है, पूरी दुनिया। ये तय शुदा बात है, इजराइल और अमेरिका की बात बता रहा हूं। कोई ये ना समझे कि ये हल्की बात है, पूरी दुनिया एक हो गई और हम अकेले रह गए, जबकि हमारे साथ खुदा भी है, रसूल भी है, अहले बैत भी है, इसलिए हम फायदा न उठा सकते। आज चाइना में देखिए सुअर का गोश्त खाना इजबारी हो गया, जबरदस्ती मुसलमानों के लिए। बताइए वहां के मुसलमान नहीं खाते थे कभी, अभी भी जब उस पर ये कानून लागू हुआ कि आपको सुअर का गोश्त खाना, पूरी दुनिया में ये बात है। जहाँ जहाँ के लोग मुख्यमंत्री हैं उसमें किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं। जबरदस्ती जो अब चल रहा है ना, ये पास शुदा चीज है, हम जागे या ना जागे। 5 लाख बच्चे शियांजान में पल रहे हैं, समझ रहे? उनको इस्लामी तौर और तरीके से दूर रखा गया। जब वो जवान हो जाएंगे और उनको जब खोला जाएगा वो जानेंगे नहीं हम मुसलमान थे। सोचिए 5 लाख बच्चे, 5 लाख बच्चे के करीब यमन में शिया बच्चे भूखमरी से मर रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं।
हमारे यहाँ का जो बच्चा पैदा होता है जिस तरह कमजोर और लागर रहता है उसकी शक्ल के एक साल 2 साल के बच्चे को खाना नहीं मिलता है। समझ रहे? हम लोग कहाँ हैं? हम लोग बेदार नहीं। एक जगह बैठने से एक जगह होने से और सिर्फ लकलकाए जबान करने से कुछ नहीं होता। आज इन मासूम और मजलूम कोयटा के शियाया ने हैदर करार को जो सिबा किया गया, ये क्यों? इस पर नजर होनी चाहिए, इस पर एहतजाज होना चाहिए। और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग ऐसे दुनिया है कि बीबी ज़हरा के हम भी चल रहे हैं। अभी इतनी बढ़िया बढ़िया नस्ल लोगों ने सुनाई है कि मेरे मौला कब आपका ज़हूर होगा। सही है, लेकिन मौला ने भी कहा शियो तुम आमादा रहो तब तो मैं आऊंगा। अब फौज तैयार नहीं, कमांडर कैसे आ जाएगा? समझ रहे? हम इमाम ज़माना के फौजी है, सिपाही है, हमें आमादा रहना है इल्म से, तक़वे से, तहारत से, इबादत से, जिस्मानी एतबार से भी, और आमादा रहकर फिर हम कहें लब्बैक या मेहदी, फिर मौला कहेंगे लब्बैक या चाहने वाले। समझ रहे? आज दुनिया में जुल्म बर्बरिया। अय्याम फातिमिया की फजीलत के बारे में आयतुल्लाह ख़ामनई साहब से किसी मर्द मुजाहिद मोमिन मुज्तहिद ने पूछा, हुजूर हमने देखा कि 10 दिन अय्याम फातिमिया में आप रोजाना शुरू से लेकर आखिर तक मजलिस में रहते हैं, इसकी हिकमत क्या है? फरमाते हैं मैं इसलिए आता हूँ कि अपने पूरे मुल्क ईरान की रोजी बीबी ज़हरा से लेता हूँ। परेशान है, घर की बेटियां परेशान है, बहुएं परेशान है, जो जहां वहीं रुक गया है, सब परेशान है। अय्याम फातिमिया की मजलिसों में लोग आए अपनी रोजी ले, उलमा का इस पर एतकाद है और होना भी चाहिए। ये समाज में हमारे परेशानियां कब दूर होगी? जहाँ देखो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते हैं मसाइल लेकर, ऐसी बात नहीं है, भले से मैं न बताऊं, लेकिन इशारा करूं, बहुत से घरों में हमारी बेटियां बहुएं नाराज पड़ी हैं, उनकी कोई खैरियत लेने वाला नहीं है कि चल के सुलह करा दे, चल के मिला दे, बदबीनी हो गई दूर कर दे। ये कब होगा? ये खाली हम खाने पीने से हमारी जिम्मेदारी नहीं पूरी होती, भूल जाए लोग। खाली बेहतरीन लिबास पहनकर प्रेस करके शान से बाइक या कार में बैठकर जाना ये हुनर नहीं है। हुनर ये है कि मौला अली की तरह रात में उस बिस्तर पर सोते थे, फिर उसी बिस्तर को दिन में जानवरों के लिए किसान मुहैया करते थे। ये है अली की चादर की वजह। दुनिया पहचाने अली के पास क्या था? अलग जाहिर 3 चीजें थी, गालिब था कुछ नहीं था। 3 चीजें आप जानते हैं, बताऊंगा मैं। नंबर 1 ज़ेरा, नंबर 2 एक ऊंट, नंबर 3 क्या? मौला अली के पास एक किली फर्श के सामने बिछी हुई है, ये मौला अली की निशानी है। लोग समझते इसे ही बिछा लेते हैं। जो देखे ये फर्श को मौला अली की यादगार है, इसलिए मर्सिया इस पर पढ़ा जाता है। समझ रहे? 3 चीजें। जब शादी के लिए लोग आए और कहा कि यानी आप बीबी ज़हरा को क्या दोगे, आप पास है क्या? तो मौला अली ने एक बार सर झुका लिया, कहा मेरे पास तो कुछ नहीं, लेकिन 3 चीजें हैं। और कहा लेकिन मैं ऊँट इसलिए नहीं बेचूंगा कि मेरा कारोबार इससे है, फर्श और गिलीम इसलिए नहीं बेचूंगा कि इस पर इबादत करता हूँ, कुरान की तिलावत करता हूँ। तो मेरे पास ज़ेरा है, ज़ेरा अली ने बेच दी। इसको कहते हैं बहादुरी, इसको कहते हैं जानिसारी, इसको कहते हैं ये है समाज, इस्लामी समाज, दीनी समाज। लिहाजा जितना जो मसाइल अल्लाह रसूल के लिए बदबीनी दूर करो, आपस में मोहब्बतें लाओ, आपस में एक दूसरे से अच्छी
शामिल करो, जो सामने बोला वही पीछे की बात करो, तब जाके समाज सुधरेगा। तब इन्हीं बहनों और माओ के दामन से फिर हमारे यहाँ बीबी ज़हरा का ज़रदार निकलेगा। समझ रहे? बस मजलिस बहुत लंबी नहीं करना है, खत्म कर रहा हूँ। बहुत से मसाइल हैं जवानों, मैं 2-3 सवाल लेकर आया था, लेकिन फिर कभी मौका मिलेगा। पहला सवाल ये लेकर आया था कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत क्यों, बाप के पैरों के नीचे जन्नत क्यों नहीं है? सवाल मैं दिए देता हूँ, आइंदा देखिएगा। समझ रहे? अल्लाह ने रसूल का कौल दिया, जन्नत जन्नत माँ के पैरों के नीचे, तो क्यों? और बाप के पैरों के नीचे क्यों नहीं? जबकि बाप सुबह से जाता है और ड्यूटी से लौटता है रात के 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जिसकी जो ड्यूटी होती है, मेहनत तो ये करता है बेचारा, लेकिन माँ को जो मिला है ये फलसफा क्या है? सवाल है मेरा, जवाब जो देगा वो देगा। शोरा लोग भी है, इल्मदार भी है। समझ रहे? दूसरी और भी सवालात हैं, लेकिन मैं ये बतला रहा हूँ कि अगर मेरे अंदर कोई ताकत है, मैं अपनी बता रहा हूँ, तो खुलूस से दिल से उस काम को अंजाम दिया जाए जिसमें हमारा समाज परेशान हाल है। कोई किसी की मजा ना ले, ये जान लिए। सूरह बकरा दूसरे सफर पर खुलाए काला हुदम मिन रब्बिहिम वाली जब आयत आती है, नीचे जब जाएंगे कि हे लोगों, अगर तुम किसी पर हंसोगे तो खुदा कहते हैं नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तुम पर हंसेंगे। समझ रहे? लिहाजा कोई किसी पर हंसे ना, क्योंकि जिस पर आप हंस रहे हो ना वो आगे निकल जाएगा, और जो आप हंस रहे थे कि किसी के ऊपर, आप खुद उस पर ढेर गिर जाओगे। ये जान लीजिए। लिहाजा अगर समाज का दर्द है, दीन का दर्द है, मराज-ए-ज़ाम का दर्द है, माँ बहनों बेटियां जो फंसी हुई है इधर उधर घरों में, उनका कोई वारिस नहीं है, न लाने वाला है, न ले जाने वाला है, न सुलह कराने वाला है। कदम आगे बढ़ाओ, बेटियों को इज्जत दो। इसलिए कि बीबी ज़हरा ने बेटियों को इतनी इज्जत दी कि सूरह निसा भी नाजिल हुई, सूरह कौसर भी नाजिल हुआ। शोहदा की याद में, वो शोहदा जिनको बेदर्दी से टुकड़े टुकड़े, किसी के हाथ, किसी के पांव, जानवरों को भी जनाब ऐसा सिवा नहीं किया जाता जैसा कि उन लोगों ने बलूचिस्तान पाकिस्तान में किया। किसी से नहीं डरते जनाब। पाकिस्तान का नाम है, क्या मतलब? हमारा वो लगते जिगर था, हमारे वो पारे थे, बदन के हिस्से थे। जालिमों ने, आतंकवादियों ने, IS वालों ने इजराइल अमेरिका के इशारे पर ऐसा कदम उठाया। आप क्या समझ रहे हैं? बहुत से लोग अभी मालूम नहीं कहाँ उनको लेकर भाग गए। ये तो 11 के बारे में तादाद मिल गई, बाकी लापता है। इन लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया, वो मजबूर हो गए, अपनी आवाज उठाए, लेकिन सब दबा दी गई। उनको बड़ी तकलीफें दी गई, उनको पानी भी नहीं दिया गया, उनके ऊपर ऐसा जुल्म हुआ। और फिर जब किसी ने पूछा भाई ऐसा क्यों किया, कहा इसलिए कि अहले बैत के चाहने वाले शिया थे। अब आप अंदाजा लगाइए, ये सबकी जिम्मेदारी है, एक आलिम की नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है कि एहतजाज करें। ये रास्ते में चप चप गुपचुप करना, ये सब मरने के बाद फरिश्ते हंटर लेकर आएंगे, और एक मीटर का नहीं 30 से पारे किया 30 गज की जंजीर होगी जो बांध कर खींच के ले जाएंगे। कहाँ है लोग? तमाम मराज-ए-ज़ाम के मसाइल आ चुके, पढ़िएगा। सबने इजहार अफसोस किया, ये जो सुना हुआ है, समझ रहे हैं? ये लाशें 4-5 दिन तक रोड पर पड़े, नासिर मकारिम शिराज़ी का फतवा आया, तब जाके वो दफन हुए, वरना इनके
के लाशें उसी तरह पड़े रहे जिस तरह से हमारे मौला मजलूम आका हुसैन के जनाजे पड़े रहे। अज़ादारों, बीबी ज़हरा के इतने मसाइब यही जालिम जो आज कर रहे हैं। बीबी ज़हरा के दरवाजे पर आग और लकड़ियां लेकर जमा हो गए। बीबी ज़हरा, अरे पिज़्ज़ा से कह पिज़्ज़ा जाओ, उनसे कह दो कि ये तत्हीर का घर है, ये वही इलाही का घर है। पिज़्ज़ा जाकर कहती है, ए जालिम चले जाओ, इस घर में बिन्ते रसूल है, कहा रहने दो, कहा इस घर में पुरानी आयतें नाज़िल होती थी, इस मकान को मत चलाओ, कहा रहने दो। जब देखा कि कोई चारा नहीं, बीबी ज़हरा ने फरियाद की, पिज़्ज़ा कह दो इस घर में हसन और हुसैन रहते हैं, कहा रहने दो। कहना था कि जालिमों ने जलता हुआ दरवाजा बीबी ज़हरा के ऊपर गिरा दिया। बीबी ज़हरा, अरे पहले करो दीवार, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह पिस गई और बिगड़ गई। आवाज़ दी, ए अस्मा, मेरा मौत से शहीद हो गया। मैं बीबी ज़हरा की वसीयतें पढ़ने जा रहा हूँ और मसाइब यहीं पर खत्म हो जाएंगे। मसाइब तो बहुत है, इंशाअल्लाह यह में फातिमिया आ रहा है, आप लोग से उलमा से सुनाएंगे। पहली वसीयत ये थी कि ए मेरे चाहने वालों, मौला ये मेरे अली, एक वसीयत ये लिख लो कि मेरे जो चाहने वाले क़यामत तक आते रहेंगे, फातिमा की तरफ से उन्हें सलाम कह देना। अज़ादारों, बीबी ज़हरा ने सलाम अर्ज़ किया, यहीं से जवाब देते, अस्सलामु अलैकुम या इम्मतल वफ़ी, अस्सलामु अलैकुम या फ़ातिमतज़ ज़हरा। बीबी ने खाली एक वसीयत अब्बास के हवाले से लिख लो। एक बच्चा होगा, वो बच्चा तुम्हारा ही नहीं, मेरा बेटा होगा। मैंने अपने एक हाथ से उस बच्चे का लिबास सिला है, अब्बास के लिए दे देना। मैं सोचा करता था, अब्बास ने करबला में हुसैन के लिए दोनों हाथ क्यों दे दिए, ये बताना चाह। ज़हरा ने एक हाथ जालिमों की वजह से खो दिया था। आयत नजर में आई, हर जगह उन्हें तो सही फातिमा के बेटे के लिए अब्बास दोनों बाजू दे। अब्बास दोनों बाजू दे। अज़ादारों, वसीयतें बहुत है, लेकिन आखिरी वसीयत, ए अली देखो, जब मुझे दफन कर देना तो मेरी कब्र पर आना, सूरह यासीन की तिलावत करना। आज मौला के रज़ा मजलिस के पहले आए, सूरह यासीन और कुरान की तिलावत की, बीबी ज़हरा को हदिया किया। ये वसीयत पर अमल हुआ, शुक्र खुदा है। बीबी ज़हरा ने कहा, अली मेरी कब्र पर आना और वसीयत कर दी सूरह यासीन की तिलावत करना, लेकिन अली बुलंद आवाज से गिरिया मत करना।